Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 27, The Brave Warrior of Chhattisgarh. Geeta and Mohan have come to Raipur to attend a marriage at their uncle's place. Today, they, with their cousin Ramesh, went out to see the local market of Raipur. They found a huge crowd at a square. एक चौराहे पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग क्या है क्राउड में मतलब इकट्ठे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है. मोहन वेंट नियर द क्राउड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग. द पीपल हैड फ्लावर गार्लैंड्स एंड wreath in their hands and were chanting slogans in praise of a great man. The person standing there told them that since it was 10th December, they were celebrating death anniversary of the martyr Veer Narayan Singh, the worthiest son of Chhattisgarh. So they were celebrating the death anniversary of martyr Veer Narayan Singh. About 150 years back, Veer Narayan Singh was hanged to death. Every year people assemble here to pay homage to the great martyr. So around 150 years back, जो वीर नारायण सिंह हैं इनको क्या किया गया था, फांसी की सज़ा दी गई थी. द पीपल adorned his statue with garlands, wreath and flowers. On this occasion, a man sang the following song with great enthusiasm and zeal. zeal यानी एक्साइटमेंट के साथ प्रेजेंट किया और जो उनका स्टैचू है उसको फूलों से क्या किया, सजाया, फूल मालाओं से सजाया. The Haldi Gharti of Chhattisgarh is the soil of Sona Khan. India's sacred pilgrim is the land of Sona Khan. है ना, इंडिया का पवित्र जगह है वो. Narain fought against oppression and injustice. He clashed with the Britishers and walked the path of sacrifice. So जो नारायण जी हैं, he fought against injustice. जो गलत चीज़ें हो रही है हमारे समाज में उसके लिए उन्होंने क्या किया, लड़ा. किससे लड़ा? With Britishers and walked to the path of sacrifice. उन्होंने अपनी भी क्या करी, बलिदान चढ़ा दी. Welcoming death with a smiling face and was blessed with God's grace. That is the spring of worthy sons, the soil of Sona Khan. Sing this song together in the class. If you remember any such song, then sing it in your class. So वो हंसते हुए क्या हो गए, फांसी पे चढ़ गए और उन्होंने उसको क्या माना, भगवान का आशीर्वाद माना कि मैं जा तो रहा हूँ बट मैंने किसी का कल्याण किया, कुछ अच्छा किया, किसी के अंदर क्रांति की लौ जगलाई, है ना. और देखो वो चाह के भी क्या हो गए, अमर हो गए. विच प्लेस डिड वीर नारायण सिंह बिलोंग टू? वीर नारायण सिंह बिलोंग टू सोना खान, है ना. द वर्ड केम इन द पोएम. Whom did he fought against? So he fought against the Britishers, है ना. वो जो ऑपरेशंस और इनजस्टिस कर रहे थे, लोगों को दबा रहे थे, उनके ऊपर रूल कर रहे थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई. राइट इन योर वर्ड्स द डिफरेंट एपिसोड्स मेंशन इन द पोएम. तो पोएम में क्या बताया गया कि सोना खान उनका क्या है, प्लेस है, बर्थ प्लेस है. वो एक बहुत ही पवित्र भूमि है. सोना खान इज़ अ होली प्लेस. He fought against Britishers and gave his life to the motherland. अपनी मातृभूमि के लिए क्या हो गए, समर्पित हो गए. He welcomed his death with smiling face. Veer Narayan Singh's father, Shri Ram Rai, was the landlord of Sona Khan, which was a state on the bank of river Mahanadi. Shri Ram Rai was fearless, generous and extremely popular amongst his people. तो fearless निडर थे, generous परोपकारी थे and extremely popular यानी उनका बहुत कीर्तिमान था. This was not liked by the other जमींदार्स. तो दूसरों को तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, तो ऐसा ही हुआ इनके साथ. वीर नारायण सिंह was born about 200 years back. After his father's death, he took over the responsibility of his state. Like his father, he too was fearless, generous and just. Just यहाँ मतलब है न्याय, न्यायप्रिय. He was popular among his people. The other zamindars were jealous of his popularity.
At that time, India was ruled by the Britishers. All the kings and landlords of Indian state had to give a part of their income to the Britisher, है ना। तो सभी राजा और लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार जो हुआ करते थे उन्हें अपनी इनकम का कुछ हिस्सा एज अ टैक्स के फॉर्म में ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। द ज़मींदार्स अक्वायर्ड दिस मनी फ्रॉम द फार्मर्स। तो ज़मींदार अपने पॉकेट से नहीं देता था, अपने पॉकेट से बहुत लिटिल और बाकी का हिस्सा वो अपने आसपास जो लोकल फार्मर्स रहते हैं उनसे वसूलता था। द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स वर इंक्रीजिंग इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑपरेशन मतलब दबाव देना, किसी भी चीज़ के लिए क्या करना, दबाव देना अत्याधिक। वंस देयर वॉज अ फेमाइन इन सोनाखान। तो फेमाइन यानी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, यानी बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई जिसके कारण क्या हुआ, क्रॉप क्या हो गए, खेत खराब हो गए, फसल खराब होगी, कल्टीवेशन नहीं हो पाया जिसके कारण अनाज नहीं होगा और पानी की भी एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पीपल बिगिन टू डाई ड्यू टू हंगर। भूख से कारण लोगों की डेथ होने लगी। वीर नारायण सिंह ट्राइड हिज बेस्ट टू हेल्प हिज पीपल। ही टुक ग्रेन ऑन क्रेडिट फ्रॉम द मर्चेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज पीपल। तो वो क्या कर रहे थे, अनाज उधार पे लेकर आ रहे थे, किससे, मर्चेंट से, ठीक है, जो भी व्यापारी थे उनसे, और अपने जो उनकी स्टेट में जो लोग रहते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे ताकि किसी की डेथ ना हो। वंस अ मर्चेंट रिफ्यूज्ड to lend him any grain. Narayan Singh got so furious that he broke open the lock of the merchant's godown and distributed the grain amongst his people. तो क्या हुआ, एक बार मर्चेंट ने मना कर दिया कि नहीं, तुम तो उधारी में लेके जाते हो, यू आर नॉट पेइंग मी मनी ऑल्सो, तुम इतना इतना लेके भी जा रहे हो, ठीक है, मुझे भरोसा भी नहीं हो रहा है कि तुम मुझे पे करोगे, आई डोंट वॉन्ट टू सेल यू। और वैसे भी मेरे पास अनाज है और आसपास के स्टेट में क्या हो रहा है, बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं है वहाँ पे, मैं वहाँ पे सेल करूँगा। तो उसने अपने जो भी अदर थॉट्स होंगे उन चीज़ों को सोचते हुए मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। तो उनको इतना गुस्सा आया नारायण सिंह को कि उन्होंने गुस्से में उसके गोडाउन का गेट ही तोड़ दिया और वो अनाज ले गए और जाके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वाई डू यू थिंक द मर्चेंट मस्ट हैव रिफ्यूज टू गिव हिज ग्रेन टू वीर नारायण सिंह। तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक पर्सनली दैट एक तो पहले से उधारी थी, वो अपना पुराना शायद नहीं चुका रहे होंगे, उसको इस बात की इनसिक्योरिटी रही होगी और वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा होगा, बिकॉज दीज आर द सीजन पॉइंट्स, है ना, जो व्यापारी होते हैं वो यहीं पे धन कमाते हैं। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट रीज़न है, दीज टू। मे बी द मर्चेंट वॉन्टेड टू अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग द स्टोर्ड ग्रेन्स। डिस्कस इन योर क्लास द प्रॉब्लम पीपल फेसिंग ड्यूरिंग फेमाइन। तो फेमाइन में क्या हो रहा है, बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो नदी, तालाब, कुएं का जल स्तर, वाटर लेवल नीचे गिर जाता है, मतलब काफ़ी सूखा सूखा दिखने लगता है, पानी बहुत कम हो जाता है। अब ऐसे केस में एनिमल्स का और ह्यूमंस का रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी तो है पर बहुत कम है, और इतना कम है कि आप कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, पेड़ पौधे उगाना, जो फसल है वो भी ख़राब हो जाती है सूखने के कारण। So during famine, there is a huge shortage of food and water. Next one, what do you think the merchant must have done after the lock was broken? है ना, जब उसके गोडाउन का गेट तोड़ दिया गया तो उसने क्या किया होगा, चिल्लाया होगा, डांटा होगा और जाके कंप्लेन किया होगा कि तुमको तो मैं बताता हूँ, है ना। तो the merchant would have shouted and must have logged a complaint against him. है ना, हम कंप्लेन करते हैं अगर कोई हमारे साथ क्या करता है, रॉन्ग करता है। So he also did the same. The merchant logged a complaint against Narayan Singh to an English officer. The English put Narayan Singh in jail on charges of डकैती। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश ऑफिसर्स थे, उसके पास जाके कंप्लेन करी कि इसने ऐसा ऐसा किया, और उन्होंने क्या FIR बनाई इसके अगेंस्ट पे, डकैती की, है ना। डकैती यानी जो बिना परमिशन को तो सारा सामान चुरा के ले जाना, चोर बोल दिया, बल्कि वो चोर थोड़ी थे, वो तो खुद मांग रहे थे उधार पे कि आई विल पे यू लेटर ऑन, डोंट वरी, है ना, मुझे अभी दे दो उधार पे। लेटर नारायण सिंह विद द हेल्प ऑफ हिज पीपल एंड शोल्डर्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, जेल से भाग गए। ऑन रीचिंग हिज स्टेट सोनाखान ही कलेक्टेड एन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वो वापस अपने घर आए, सोनाखान आए, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक आर्मी बनाई विद द हेल्प ऑफ हिज पीपल। द इंग्लिश टू सेंट एन आर्मी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ सोनाखान। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने भी अपनी आर्मी भेज दी।
हो जाए आज तो युद्ध। द इंग्लिश डिड नॉट नो मच अबाउट द स्टेट, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रेटर्स दे मैनेज टू रीच सोना खान। तो जो वीर नारायण सिंह को पसंद नहीं करते थे, उन लोगों के थ्रू ब्रिटिशर सोना खान पहुंच गए। बाकी उन्हें सोना खान कैसा प्लेस है, कहाँ पर कौन छुप सकता है, पहाड़ वगैरह हो गया, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में कोई खासा इन्फॉर्मेशन उनको नहीं थी। ना ही वहाँ के लोगों की एबिलिटी के बारे में थी कि इनको कौन से वेपन्स चलाने आते हैं। हम ब्रिटिशर से हमेशा इसलिए हारे बेटा, क्योंकि हमारे जो वेपन्स होते थे, ठीक है, वो एडवांस्ड नहीं थे। हम हार्ड वर्क तो करते थे बट हम एडवांस्ड नहीं थे, हम स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे, इनके पास टेक्नोलॉजी थी शुरू से, तो ये हार्ड वर्क नहीं करते थे, इनको स्मार्ट वर्क करते थे। जैसे इनके पास गन था, तो गन ऐसा है कि आप दूर से बैठे बैठे फटाक से आप 1 मिनट में कितने निशाने लगा सकते हैं। वेयर एज आप, अगर हम इंडियंस की बात करें, तो हम तलवार से कितने निशाने लगा सकते हैं 1 मिनट में? हमको तो खुद जाके लगाना पड़ेगा तलवार, है ना। अगर तीर धनुष भी यूज़ कर रहे हैं तो वो गन की स्पीड नहीं पकड़ सकती, वो गन की स्पीड नहीं पकड़ सकती, चाहे आपका निशाना कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ठीक है, तो हम हारे हैं तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। A fierce battle took place in Sonakhan. Narayan Singh fought very bravely. At one point of time, the Britishers were about to lose the battle, but a few traitors helped the Britishers and Narayan Singh had to leave the battlefield. है ना, तो वो जीतने ही वाले थे, ऐसा था, ब्रिटिशर्स बिल्कुल हार पक्की थी, बट एट द लास्ट मोमेंट दीज ट्रेटर्स हेल्प द ब्रिटिशर्स एंड नारायण सिंह क्या हो गए, डिफीट हो गए, और वहाँ से गायब भी हो गए। ही लेफ्ट द बैटल। Had the traitors not helped the Englishmen, what do you think must have happened? अगर वो हेल्प नहीं करते तो नारायण सिंह जीत जाते, है ना। If the traitors not helped the Englishmen, then Veer Narayan Singh must have won the battle. Narayan Singh was made a prisoner and a case was filed against him. He was given death sentence. तो नारायण सिंह को उन्होंने वापस से जेल में डाल दिया, कैदी बना दिया, और उन्हें सीधा सीधा फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की सज़ा इसलिए टू गिव अ लेसन टू द पीपल कि देखो, इसने इन हमारे अगेंस्ट गया तो हमने इसको ऐसा पनिश किया कि इसको सीधा मार दिया, है ना। हमने इसको मार दिया, इसकी पूरी स्टेट पे कब्जा भी कर लिया। तो ये दूसरों को वो दिखाना चाह रहे थे कि हम बहुत क्रूएल है ना। अगर तुम हमसे भिड़ोगे तो हम तुमको क्या करेंगे, तुमको भी मार देंगे। तो ये सारे उनके तरीके थे लोगों को डराने के। This great son of Chhattisgarh was hanged to death on 10th December 1857 in Raipur. Every year on this day, people pay homage to this great man. What have we learned? Here comes oral questions. Question number 1. When is Veer Narayan Singh Martyr Day celebrated? यानी शहीद दिवस। Answer. On 10th December, Veer Narayan Singh Martyr Day is celebrated. Question number 2. With whom did Veer Narayan Singh fight? Answer is Veer Narayan Singh fought against the Britishers. Question number 3. In which district of Chhattisgarh is Sonakhan? Answer. Sonakhan is in Baloda Bazar district of Chhattisgarh. Written questions. Question number 1. What did Veer Narayan Singh do for his people? है ना, अपने लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? Answer. During famine, people began to die due to hunger. Veer Narayan Singh took grain on credit from the merchants and distributed to his people. वो उधारी में क्या ला रहे थे, व्यापारियों से अनाज ला रहे थे और उन्हें फ्री में बांट रहे थे। When merchant refused to lend him any grain, he broke open the lock of the merchant's godown and distributed the grain amongst his people. तो जब मर्चेंट ने मना कर दिया तो उन्होंने उसका लॉक तोड़ दिया, कहाँ का, उसके गोडाउन का, और वो वहाँ से सारा ग्रेन लेके आ गए और अपने लोगों में बांट दिया। Question number 2. Why was Veer Narayan Singh sentenced to death? Answer. Veer Narayan Singh fought a battle against Britishers and he was defeated.
ही वॉज मेड अ प्रिजनर एंड वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, है ना। तो जो बैटल हुआ उस बैटल में वीर नारायण सिंह हार गए, और जिसके कारण क्या हो गया, वो हार गए इसलिए उनको बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के बाद उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। फांसी की सज़ा इसलिए दी गई ताकि आसपास के लोगों के लिए एक लेसन सेट कर सके कि देखो अगर तुम भी ऐसा कुछ करोगे तो हम क्या करेंगे, हम तुमको भी मार देंगे, है ना। वो लोगों को डरा रहे थे उनके साथ जो ऐसा पनिशमेंट दे के उनको। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ब्रिटिशर्स पुट वीर नारायण सिंह इन जेल, उनको जेल में क्यों डाला गया था। तो आंसर, द मर्चेंट लॉग्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट वीर नारायण सिंह, सो ही वॉज पुट इन जेल ऑन चार्जेस ऑफ डकैती। ठीक है, तो मर्चेंट ने उनके अगेंस्ट कंप्लेन डाल दिया था कि हमारी परमिशन के बिना वो क्या किया, हमसे ग्रेन्स लेके चला गया। ठीक है, जिसकी कंप्लेन उन्होंने कहाँ डाल दी, ब्रिटिशर्स को डाल दी, और ब्रिटिशर्स ने उनको गिरफ्तार करके उन्हें कैद में रख लिया। लेटर ऑन वो क्या हो गए, वहाँ से भाग गए। वहाँ से जब वो भाग के आए तब वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थे कि अब मैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करूँगा, आवाज़ उठाऊँगा। तो उन्होंने अपनी आर्मी रेडी की अपने लोगों के साथ मिलकर, और फिर उनकी आर्मी वर्सेस ब्रिटिश आर्मी क्या हुआ, बैटल हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जिस पे ब्रिटिश आर्मी हारने वाली थी, बट फिर भी कुछ लोगों के कारण वो क्या हो गया, उनको इन्फॉर्मेशंस मिल जा रहे थे, जिसके कारण क्या हो गया, वो जीत गए और वीर नारायण सिंह हार गए। अब वो हार गए तो लोगों को सबक सिखाने के लिए उनको पहले तो वो कैद तो ले ही गए, कैदी बना लिया, उनको जेल में डाल दिया, बट लोगों को नीचा दिखाने के लिए कि देखो जिसको तुम अपना सब मान रहे थे इसके हम साथ हम क्या कर रहे हैं, तो ये शो करते हुए उनको रायपुर में क्या किया गया, फांसी दे दी गई, खुलेआम फांसी दी गई थी उन्हें।